Okay, so good morning, everyone. Am I audible there? Am I audible? Yes, sir. Okay, and the presentation is also visible on your screens. Yes, sir. Okay, fine. So I will be today quickly summarizing the second unit and will be quickly talking about the contents which I could not cover and I had asked you to get it done yourself. I'm sure you would have done them, but still I thought of doing a quick overview of those contents so that we can just formally complete this unit. So all these things have already been done. So I'm not going into this. These are just previous slides. So let us move to the contents which we have to discuss now. So this specifically Dulong Petit thing and this phonon heat capacity. For that, we needed to find out the density of state. So all that things we have seen. How we can count density of states. What is the relation of density of states to the Brillouin zone and number of states in the reciprocal space. All that has been already done. Then we discussed the Debye model of specific heat, and I'm sure now you are comfortable with this Debye model of specific heat. So this was a general expression for specific heat. Uh, okay, maybe this one. So this was general expression for specific heat and internal energy, total energy of solid due to atomic vibrations. So this contribution is only coming from the atomic vibrations. And then we saw how Debye formulated this problem by simplifying this simple idea. I mean, this is the basic idea behind Debye model. We already have done this. So he used a sort of a classical description of omega versus k, and then from there he obtained rest of the things required, and then finally he arrived at this integral, which is also known as Debye integral. This is not exactly the Debye integral, but this one is known as Debye integral. Oh, I think I had to give you a assignment which I didn't give. Means you had to write a computer code for solving this Debye integral. दिया नहीं था ना मैं? Okay, fine. So आपको करना क्या है? Okay, this is the curve. So आपको करना क्या है? एक computer code लिखना है. You may use any language, Fortran or whatever you are comfortable in. There, your code should actually be able to get this curve. ये जो कर्व है आपको तो टेक्स्ट बुक में तो सीधा सीधा मिल गया आपको ये. This is how the curve should look like. But we want to see that this curve indeed actually comes from this. आपको ये इंटीग्रल दिया जाए और कहा जाए कि c वर्सेस t कैसा होना चाहिए, तो आप अपने आप से कोड लिखने की पोजीशन में होने चाहिए and should be able to obtain this kind of curve. So उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You have to actually solve this integral. बाकी चीजें तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगी इस तरह से, ठीक है? सो हाँ, इंटीग्रल की डायरेक्ट वैल्यू क्या वैल्यू है इसका? वो तो लो टेम्परेचर पे है ना, सो दैट इज लो टेम्परेचर थिंग. पर जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे करेंगे सो दैट वोंट बी पाई रेज़्ड टू पावर 4. ये तो लो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेशन है. सो लो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेशन मतलब डिवाइड टी क्यूब अगर आप लगाते हो तो लो टेम्परेचर में ये इस तरह का टी क्यूब टाइप बिहेवियर आपको मिलेगा, ठीक है? बट इन जनरल आप इसको अगर हाई टेम्परेचर पे, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर दिस सेम इंटीग्रल वुड लीड टू दिस सैचुरेशन इन द वैल्यू, ठीक है? इसी इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको वो सब मिल सकता है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक कोड लिख, यू कैन प्लान, आई मीन न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हो इसको. सो यू हैव टू फर्स्ट योर कोड हैव टू फिक्स वैल्यू ऑफ थीटा डिबाई टेम्परेचर, कि भाई
डिबाई टेम्परेचर कितना है किसी मटेरियल के लिए वो फिक्स करे. सो दिस शुड बी इनपुट. I mean, we can, let me just quickly give you an idea कि आपको कैसे लिखना है. मैं आपको ऐसे भी छोड़ सकता हूँ इसको, बट ओके, कुछ आइडिया दे देता हूँ, ठीक है. सो आपको कुछ इनपुट्स देनी पड़ेंगी अपने कोड में. सो थीटा शुड बी द इनपुट. So let us think, assume that we want to obtain specific heat per unit atom. So n को हम left hand side में ले जाएंगे. So basically we would like to write down the code for CV by n. CV by n के लिए हम ये कोड लिखना चाहेंगे, ठीक है, ताकि स्पेसिफिक हीट पर एटम आए और वो 25 जूल पर मोल पर केल्विन के आसपास वैल्यू आपकी सैचुरेट होनी चाहिए एट वेरी हाई टेम्परेचर. सो इनपुट्स क्या होनी चाहिए? थीटा means Debye temperature, which for a specific material is a specific value. आप उसको थीटा को एस्टिमेट करने के लिए ये इक्वेशन यूज कर सकते हो. जैसे कोई भी मटेरियल है, इवन डिबाई टेम्परेचर थीटा डायरेक्टली देने की बजाय यू मे थिंक ऑफ कैलकुलेटिंग थीटा इन योर कोड. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि भाई आपकी जो यूनिट सेल है वो सिंपल क्यूबिक है या फिर एफसीसी है या बीसीसी है, व्हाटएवर इट इज. तो आपकी यूनिट सेल का कोई वॉल्यूम होगा से V, और उसमें कुछ नंबर ऑफ एटम्स होंगे. यू हैव टू फाइंड आउट इट. सपोज एफसीसी है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे यूनिट सेल में? एफसीसी के सॉरी, बीसीसी में तो 2 होंगे, एफसीसी में 4 होंगे, ठीक है. So n over V means you have to accordingly find out the volume of the unit cell. उसके लिए आप उस पर्टिकुलर मटेरियल का, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट की बात करना चाहते हो आप, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए आपको क्या करना होगा? एल्यूमिनियम हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है. सो आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे. सो उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स 4 आ जाएंगे, एफसीसी है क्योंकि, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम किसमें होगा? लैटिस कांस्टेंट ऑफ एल्यूमिनियम ले लीजिए, जितना भी एंगस्ट्रॉम होगा, देन वॉल्यूम निकाल लीजिए. सो थोड़ा आपको केयरफुली करना पड़ेगा, मतलब वही जैसे हम न्यूमेरिकल्स पीछे करते आए हैं, ठीक है. वो वैल्यूज पुट करेंगे तो बाकी सभी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है. आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट दिस एज वेल, है ना. V क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी, राइट. तो डिबाई टेम्परेचर, आप एक टिपिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी भी ले सकते हो, क्योंकि डिबाई टेम्परेचर का एक रफ आइडिया अगर लेना है आपने, ठीक है, तो आप एक रफ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो कि 10 रेज़ टू द पावर कितना 3 या 4 के ऑर्डर की होती है, 10⁻³ रफली उस ऑर्डर की होती है. हमने पिछली क्लास में बात किया था ना, समथिंग लाइक 10⁻³. इसमें शायद 5, मतलब अगर मीटर पर सेकंड में लोगे तो 3 और सेंटीमीटर पर सेकंड में लोगे तो 10⁵ के ऑर्डर की होगी, ठीक है. सो टिपिकली उस वैल्यू को डाल देंगे तो उससे आपको रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिबाई टेम्परेचर मिल जाएगा. और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पिक अप एक्सपेरिमेंटली या गूगल से आप थीटा की वैल्यू ले लीजिए. हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिबाई टेम्परेचर को थियोरेटिकली प्रेडिक्ट करना नहीं है. हमारा ऑब्जेक्टिव इस असाइनमेंट में क्या है? हम इस कर्व को ही देखना चाहते हैं कि भाई ये इस इंटीग्रल से कैसे आती है, ठीक है. So for that, what we need to do is theta की वैल्यू आपने निकाल लिया, that you can try with this way. चलो एक एडिशनल होमवर्क के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि टिपिकल वैल्यू ऑफ V सब्स्टिट्यूट करें और देन यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट विल बी थीटा. कोई क्या ज्वाइन करना चाह रहा है क्या? कब तक ज्वाइन करते रहते हैं ये? 10 बजे तक. ओके, सो देन यू कैन गेट, या फिर आप ऐसे करिए कि डिबाई टेम्परेचर डायरेक्टली ही पुट कर लीजिए एज ए नंबर इन योर प्रोग्राम, ठीक है. सो डिबाई टेम्परेचर जब आपके पास आ गया तो ये जो वैल्यू है आउटसाइड द इंटीग्रल ये फिक्स हो जाएगी, बट दिस वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल द टेम्परेचर्स. दिस वैल्यू हैज ए टेम्परेचर डिपेंडेंस, एंड ऑफ कोर्स व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इज हीट कैपेसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही तो निकाल रहे हैं हम. ये फोनोनिक पार्ट ऑफ हीट कैपेसिटी है वैसे, ठीक है. तो हमने मान लीजिए आपके प्रोग्राम में इनिशियल टेम्परेचर कोई डिसाइड कीजिए, फाइनल टेम्परेचर भी, भाई मुझे प्लॉट कहां से कहां तक लेना है. सो इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर. 0 एग्जैक्टली ले लोगे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको प्रैक्टिकली. सो
you should avoid going to 0. Maybe 0.1, 0.2 या 1 केल्विन से बहुत हाई तक जा सकते हो. वो न्यूमेरिकली आप ट्राई करिए कि क्या प्रॉब्लम आएगा या नहीं आ रहा है. इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर डिसाइड कर दिए. देन यू नीड टू डिसाइड ए स्टेप साइज कि अच्छा इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए मैंने 1 केल्विन दिया और फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए डिवाइड टेम्परेचर मेरे मटेरियल का है मान लीजिए 400. सपोज मेरे मटेरियल का डिवाइड टेम्परेचर है 400 केल्विन. तो मैं क्या करता हूं 400 दे दिया तो फाइनल टेम्परेचर आई गो समवेयर लाइक से 1.6 टाइम्स 400, समथिंग लाइक 640 या 700 तक आप जाएं तो वहां पे आपको सैचुरेशन टाइप कुछ मिलेगा. ये डिवाइड टेम्परेचर की वैल्यू है. डिवाइड टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए वो भी आप एनालिटिकली ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने की. देयर शुड बी सम स्पेसिफिक नंबर. तो बिकॉज वहां पे T इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा. T इक्वल टू थीटा पुट करते हो तो क्या आना चाहिए उसको ट्राई करके देखना. मैं अभी छोड़ देता हूं इसको. ठीक है. सो आपने क्या करना है dt एक डिसाइड करना होगा आपको. ठीक है. स्टेप साइज टेम्परेचर स्टेप साइज. तो आपका डेटा कैसे आना चाहिए आपके प्रोग्राम से कि भाई सपोज 1 केल्विन का मैं स्टेप साइज डिसाइड करता हूं और मैं 2 केल्विन से 700 केल्विन तक जाता हूं तो योर प्रोग्राम शुड गिव यू द वैल्यूज एट 2, 3, 4 अगर dt 1 केल्विन लेता हूं एंड सो ऑन अप टू 700 के ऊपर मुझे स्पेसिफिक हीट की डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए. तो इन वैल्यूज को अगर मैं प्लॉट करता हूं तो मुझे ऐसा ग्राफ आना चाहिए. दैट्स व्हाट वी वांट टू सी. अच्छा प्रोग्राम में कैसे करना है इसमें. अब आप कहेंगे टेम्परेचर कहां पे आएगा. राइट हैंड साइड में आप कहोगे टेम्परेचर तो यही बैठा हुआ है. सीधा टी क्यूब डिपेंडेंसी रहेगा. ये इंटीग्रल तो फिक्स आएगा. कितने लोग ऐसा सोचते हैं. ऐसा नहीं होगा. ठीक है. क्यों. बिकॉज वी हैव एक्स डी सिटिंग हियर. एंड व्हाट इज एक्स डी. अगर आप इंटीग्रल की लिमिट देखते हो लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज 0 to xd. ये तो सारा चलो x is variable of integration, that all is fine. xd जो है that has something to do with temperature. और उसके लिए मैं आपको प्रीवियस स्लाइड को ही दिखाता हूं. यस. सो हियर इज योर xd. देखो. सो xd जो है आपका जो इंटीग्रल सॉल्व करेंगे हर टेम्परेचर के लिए अलग से सॉल्व करना पड़ेगा आपको. सो जिस भी टेम्परेचर पे मैं स्पेसिफिक हीट निकाल रहा हूं उस टेम्परेचर के लिए xd कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज हियर इज t सिटिंग हियर. सो xd विल बी थीटा जो फिक्स है. दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज विद टेम्परेचर. सो डिवाइड टेम्परेचर फिक्स होता है. ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करेगा. ठीक है. इट्स ए कांस्टेंट स्पेसिफिक टू ए मटेरियल. सो xd अलग अलग होगा अलग अलग टेम्परेचर्स पे. तो ये जो इंटीग्रल है आपको न्यूमेरिकली बार बार सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंट टेम्परेचर्स पे. एंड देन that is what will return you the values of CV at various temperatures. दूसरा, I don't know how many of you are aware of numerical integration. सुना है numerical integration? numerically integral कैसे solve कर सकते हैं? numerically. अच्छा, अब आप कहोगे ये integral कैसे solve करना है numerically? जिसने सुना है बहुत अच्छी बात है. जिसने नहीं सुना है एक brief hint दे देता हूँ. बुक रेफर कर दूंगा. एक conceptual idea आपको दे देता हूँ. ठीक है. There is a book by E. Balaguruswamy, Numerical Methods by E. Balaguruswamy. E मुझे स्पेलिंग एग्जैक्टली ध्यान BALAGURUSAMY. ठीक है. E. Balaguruswamy की बुक है. उसमें आपको न्यूमेरिकल मेथड्स मिल जाएंगे इंटीग्रल को सॉल्व करने के. बहुत सारे मेथड्स होते हैं वैसे बट मैं एक सिंपल मेथड की आपको आइडिया दे देता हूं which we can call trapezoidal rule. ट्रेपेजॉइडल रूल. ये आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा बट मैं आपको क्वालिटेटिव आइडिया भी दे देता हूं. वी आर गेटिंग अ लिटिल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दिस. सो जस्ट आपको ये ना रहे कि हमने कभी सुना ही नहीं था एकदम से हमारे सिर पे थोप दिया गया. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू क्विकली टेल यू हाउ टू सॉल्व एनी इंटीग्रल न्यूमेरिकली एम्प्लॉइंग न्यूमेरिकल टेक्निक्स. ट्रेपेजॉइडल रूल एक बहुत सिंपल सा आइडिया होता है. Suppose I have to solve some integral, say f of x dx integral from a to b. ऐसा कुछ है मान लीजिए इंटीग्रल जो मुझे सॉल्व करना है. इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे. ओके. सो उस केस में मान लीजिए हमारा फंक्शन जो है इट्स प्लॉट लुक्स लाइक दिस
ऐसे कुछ आर्बिट्रेरी सी शेप है फंक्शन की, मीन्स वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग एफ एक्स, वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यूज ऑफ फंक्शन एंड एक्स एक्सिस जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और सपोज दिस इज योर ए मीन्स इनिशियल लिमिट या लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, and this is b, the upper limit of integral, ठीक है। So how we see an integral actually is area under the curve, correct? So integral is actually the area under this curve, ये सारा area जो है वो integral को contribute करेगा। But हम क्या करते हैं numerically, we do discretization, कि चलिए मैं पूरे एरिया को अगर एक साथ निकालूंगा तो मेरे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि फंक्शन की कर्व कुछ भी हो सकती है। So what we do is we divide this full interval into small sub intervals. इस तरह से हम इस पूरे इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, तो एक बड़ा एरिया हमारा क्या हुआ, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड हो गया। और ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं, अब आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे एरियाज को मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल्स की तरह देख सकता हूं। So what we do in trapezoidal rule is, okay, let me see this area as a small rectangle, और rectangle का एरिया मुझे पता है। What will be the area of the rectangle? ये मेरा फंक्शन की वैल्यू है, मान लीजिए a के ऊपर। So मैं क्या कर सकता हूँ कि अच्छा स्टेप साइज मैंने डिसाइड किया डेल्टा x, let me say the step size is say डेल्टा x। तो मेरा टोटल एरिया क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, या इंटीग्रल क्या होगा मेरा, टोटल एरिया ए से लिख देता हूं। सो दिस विल बी लाइक ओके a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन, मींस 1 2 3 क्या है ये, दीज आर दी एरियाज ऑफ दिस स्मॉल सब इंटरवल्स। और ये स्मॉल एरियाज में कैसे लिख सकता हूं, a1 किसके बराबर होगा, सॉरी, a1 will be equal to function at a means this value, let us say this one, into delta x, ये मेरा फर्स्ट वैल्यू आई, ठीक है, फर्स्ट एरिया की। अगला एरिया क्या लेना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है, f ऑफ a के बराबर है ये लेंथ, इस रेक्टेंगल की पहली रेक्टेंगल की लेंथ मैं ये मान लेता हूं f ऑफ a के बराबर है, a के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है उसके बराबर है। तो ये फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया आ गया। सेकंड ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, अब मैं सेम लेंथ नहीं ले सकता f ऑफ a, क्योंकि जब मैं a प्लस डेल्टा x पे गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर मैं गया तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई है। लेट मी टेक दिस वैल्यू, ठीक है। सो नाउ द फंक्शन की वैल्यू कौन सी बन गई हमारी, f ऑफ a प्लस डेल्टा x। सो दिस विल बी f ऑफ a प्लस डेल्टा x टाइम्स डेल्टा x प्लस सो ऑन, सभी के लिए करता जाऊंगा। तो छोटे छोटे एरियाज को अगर मैं सम करूंगा तो मैं फाइनल फॉर्मूला, मेरा फाइनल सम क्या आएगा, विल बी द एरिया अंडर द कर्व एंड हेंस द इंटीग्रल। बट इसमें एक प्रॉब्लम है दैट वी आर गेटिंग सम अंडर एस्टिमेशन। ये जो छोटा एरिया है इसको हम मिस कर रहे हैं हर बार, जैसे इस केस में भी यहाँ पे ये छोटा पोर्शन को मिस कर देंगे हम, दिस स्मॉल पोर्शन। आई होप यू आर एबल टू फॉलो व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन। देन यहाँ पे भी ये नीचे वाला ही एरिया ले रहे हैं हम, दिस एरिया इज बीइंग मिस्ड फ्रॉम द फाइनल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द स्टेप साइज और इवन ट्राई टू मॉडिफाई अवर मेथड। सो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फंक्शन को, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग फंक्शन एट लोअर वैल्यू, a और a प्लस डेल्टा x के बीच में मैंने फंक्शन कहाँ लिया, लोअर वैल्यू पे लिया। दूसरा तरीका हम कर सकते हैं कि फंक्शन को मिड पॉइंट पे इवेलुएट करते हैं। मतलब ओके, मैं क्विकली आइडिया देता हूं, थोड़ा बड़ा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये फंक्शन है, ये मेरा 2 पॉइंट्स के बीच का स्टेप है, ठीक है। तो अगर मैं इससे एरिया को लेता हूं तो दिस इज द वेस्टेज और द एरिया आई एम से सपोज ये मेरी लोअर वैल्यू है। अगर मैं फंक्शन की ये वैल्यू लेता हूं तो दिस इज द एरिया, ये जो एरिया है ये मैं काउंट कर रहा हूं और ये मैं इग्नोर कर रहा हूं, फाइन।
नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई ओके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग फंक्शन एट दिस लोअर वैल्यू, टेकिंग एफ ए, अगर मैं एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 लेता हूं, तो मैं मिड पॉइंट पे ले रहा हूं ना फंक्शन की वैल्यू। दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा खिचड़ी बन गया इसमें। तो इस तरह से मान लीजिए ये मेरा सिचुएशन है, इस तरह से कर्व है यहां पे, यहां पे। अब मैं यहां पे लेने की बजाय, इस एरिया को काउंट करने की बजाय मैं क्या कर रहा हूं, मिड पॉइंट पे फंक्शन को लेते हैं और इस वैल्यू को लेते हैं। तो मैं कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल ले रहा हूं, तो कौन सी रेक्टेंगल का एरिया ले रहा हूं? अब मेरी रेक्टेंगल ये बन गई, दिस वन इज माई एक्चुअल रेक्टेंगल विच आई एम कंसिडरिंग फॉर कैलकुलेशंस। क्योंकि अब मैं क्या कह रहा हूं कि अच्छा, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 पे एफ फंक्शन को मैं कहां कैलकुलेट करता हूं, ये ए है, ये ए प्लस डेल्टा एक्स है, ये मेरा क्या है, ए प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 है। सो फंक्शन को मैं मिड पॉइंट पे कैलकुलेट कर देता हूं। उससे क्या होगा, कुछ मेरा एरिया अंडर एस्टिमेट हुआ, कुछ मेरा एक्स्ट्रा आया। सो वी कैन सॉर्ट ऑफ सी सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस कि भाई अच्छा, मतलब मेरा कुछ एरिया अगर मैंने कम किया या इग्नोर किया तो कुछ एरिया एडिशनल भी लिया, विच विल सॉर्ट ऑफ बैलेंस द फाइनल रिजल्ट। तो ये भी एक तरीका हो सकता है टू कैलकुलेट द इंटीग्रल। ठीक है, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, लाइक सिम्पसन रूल, सिम्पसन 1/3, 3/8, अलग अलग रूल हैं। मैं आपको उन सब में जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बिकॉज दिस इज नॉट द कोर्स ऑन न्यूमेरिकल मेथड्स। तो आप क्या करिएगा कि फंक्शन को इवेलुएट करिएगा a प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 पे, मे बी दैट इज ए बेटर वे। तो प्रोग्राम में थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा, मतलब, बट आई एम श्योर यू हैव दैट मच ऑफ कॉमन सेंस टू गेट इट डन। तो अब हमारा फंक्शन क्या होगा इस केस में, और कहां तक जाना है आपको, एक ही बारी में नहीं, ये एक ही वैल्यू का एरिया नहीं, आपको सारे एरिया सम करने हैं। तो जो आपने टेम्परेचर वैल्यू सेट किया होगा कोई, मान लीजिए मैं रेंज तो मेरी थी 2 से लेके से 600 केल्विन, बट मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूं, मान लो 50 केल्विन पे कर रहा हूं स्पेसिफिक हीट। तो उस केस में मेरा क्या आएगा, T 50 केल्विन आ जाएगा, थीटा तो फिक्स है डिवाइड टेम्परेचर, एक्स डी विल बी कितना, थीटा बाई टी होता है ना वो, सो थीटा बाई टी, तो वो इंटीग्रल की लिमिट आ गई। अब मैं स्टेप साइज डिसाइड करूंगा कि एक्स किस स्टेप में मुझे इंक्रीमेंट करना है। तो और x विल गो फ्रॉम, x एक्चुअली गोज फ्रॉम 0 टू एक्स डी। तो आपके प्रोग्राम में आप डिसाइड करेंगे तो 0 से लेके, सॉरी, मुझे कहां से जाना है, इस तरह से अगर हम न्यूमेरिकली मतलब कंसेप्चुअली देखना चाहें तो ये इंटीग्रल कोई भी इसका प्लॉट होगा, जो भी है, हमें प्लॉट नहीं करना है, कोई प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो न्यूमेरिकली करना है। तो मुझे क्या करना होगा, से x इक्वल टू 0, तो फंक्शन एट 0, इसकी वैल्यू आप 0 पे निकालेंगे तो कुछ आएगी, पर हम 0 पे नहीं ले रहे हैं। मैंने मान लो डेल्टा x डिसाइड किया, एक्स डी माइनस 0 डिवाइडेड बाई स्टेप साइज या नंबर ऑफ पॉइंट्स में कितने ले रहा हूं, मान लो यहाँ 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 कितने पॉइंट्स ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने लिए 1000 पॉइंट्स या n ले लिया उसको मैंने, ठीक है, तो वहां से डेल्टा x डिसाइड हो जाएगा। सो जितने ज्यादा आप n बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका इंटीग्रल की वैल्यू एक्यूरेट आएगी। ठीक है, तो n मैंने ले लिया, स्टेप साइज आपका डेल्टा x हो गया, ठीक है, डिसाइड हो गया। तो अभी आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, 0 पे कैलकुलेट करने की बजाय मैं इस फंक्शन को, मींस इस फंक्शन को मैं कहां पे कैलकुलेट करूंगा, 0 प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 पे। तो फंक्शन की पहली वैल्यू f1 क्या बोलूंगा मैं, 0, मतलब कहां पे कैलकुलेट करूंगा, x पे, f एट 0 प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 पे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं करना है आपने, ये x4 e raised to the power x divided by e raised to the power minus x, e raised to the power x minus 1 whole square, बस ये कैलकुलेट करना है। तो प्रोग्राम में ही आपने एक फॉर्मूला लिखना है एक लाइन का इस फंक्शन के लिए, और x की बजाय क्या वैल्यू पुट करनी है आपको, 0 प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, करेक्ट। सो ये आपको इसकी वैल्यू f1 दे देगा। तो आपके बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज का सम है ना ये, तो फर्स्ट एरिया कितना आ जाएगा, f1 इंटू डेल्टा एक्स। दूसरा क्या आएगा, सेकेंड एरिया विल बी f2 इंटू डेल्टा एक्स। तो f2 क्या लेंगे आप, f2 बता देता हूं, तो f2 विल बी फंक्शन एट
अभी आपका डेल्टा एक्स बाई 2 पे था ना पहला वाला, सो अगला वाला किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा एक्स पे, डेल्टा एक्स बाई 2 प्लस डेल्टा एक्स, फिर उसके बाद आपने डेल्टा एक्स ऐड करते जाना है। F2 ये आया तो एफ एन इन जनरल क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यूज ये पुट करके आपको वो फंक्शन कैलकुलेट करना है, और फंक्शन को फिर जो भी वैल्यू आई उसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो आपका फाइनल सम आ जाएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जब आप एक्स डी पे पहुंचेंगे, एक्स डी तक पहुंचेंगे, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा। तो सीवी क्या होगा, सीवी विल बी दिस नंबर सिटिंग आउटसाइड द इंटीग्रल टाइम्स द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ये डिबाई इंटीग्रल है। सो डिबाई इंटीग्रल के लिए न्यूमेरिकल प्रोग्राम लिखना एक अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू इट योर सेल्फ, ताकि आप जो है मतलब एक दूसरे से कॉपी ना करें। कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन डिस्कस इट विद मी, और इवन एक दूसरे से आप डिस्कस करिए, समझिए उस प्रोग्राम को कि क्या लिखा गया है या क्या किया गया है। ये नहीं कि प्रोग्राम कॉपी किया और सबने फटाफट से धड़ाधड़ वो प्लॉट जो है बना के अपलोड कर दिए, दैट वोंट सॉल्व दिस पर्पस। ठीक है, आपकी लर्निंग होनी चाहिए, असाइनमेंट अपलोड करना टारगेट नहीं होना चाहिए। सो सीवी आपका उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ जाएगा। सो इस तरह से आपके पास वो डेटा क्या आ जाएगा, अलग अलग, फिर आपको अगले टेम्परेचर पे जाना होगा, तो उसमें आपकी ये वैल्यू भी चेंज होगी और एक्स डी भी चेंज होगा। सो इंटीग्रल आपको दोबारा सॉल्व करना होगा दिस वैल्यू ऑफ एक्स डी के लिए। ठीक है, सो फाइनली व्हाट यू विल गेट, टी वर्सेस सी एज ए फंक्शन ऑफ टी। इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको ऐसा ये प्लॉट आना चाहिए, मतलब, और मैंने ये करा है खुद से, मेरे पास प्रोग्राम भी पड़ा हुआ है, बट मैं आपको दूंगा नहीं क्योंकि आई वांट यू टू गेट इट डन। तो पर ये बड़े अच्छे से आता है, मतलब ये ग्राफ आपका इस तरह से। ठीक है, सो ये मैं भी आज ही असाइनमेंट अपडेट कर दूंगा आपके उस पे, आप इसको देख सकते हैं। ये मैं डिस्कस ही किया था कि भाई कुछ मटेरियल्स के लिए बहुत अच्छे से मैच करता है डिबाई मॉडल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, पीजी स्टूडेंट्स, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखना है प्रोग्राम? हिंदी में लिख दो भाई, जैसे मर्जी लिखो। नहीं सर, मतलब आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप लिख दो, मुझे लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। आई वांट कि आपको जो डेटा आए, वैल्यूज आए, वो ठीक आए, मैच करें, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। आई मीन जो भी आपको अच्छी लगती है उसमें कर लीजिए। मैं फॉर्ट्रन में लिखा हूं, मुझे फॉर्ट्रन में अच्छा कमांड है, आपको सी, साइलैब, व्हाटएवर जिसमें भी है कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। आप अपलोड भी करेंगे, बट मुझे वो प्रोग्राम ना अपना, यू विल अपलोड द प्रोग्राम एज वेल एज द प्लॉट। एनी क्वेश्चन, एनी फर्दर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन एल्स? नहीं, तो ये आपने करके देना है। ठीक है, डिवाइड टी क्यूब हम कर ही चुके हैं, सो मैं इस पे नहीं जाता हूं। तो ये जो पाई 5 है, ये जो वैल्यू है, ये कब आती है, जब आपका एक्स डी इंफिनिटी हो जाता है। इस इंटीग्रल की वैल्यू जब इंफिनिटी है, इंफिनिटी कब होगा, एक्स डी इज थीटा ओवर टी, सो व्हेन टी अप्रोचेस 0, एक्स डी अप्रोचेस इंफिनिटी। उस केस में ये इंटीग्रल जो है वो एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करता है, इसीलिए दैट इज व्हाट वी कॉल द डिबाई टी क्यूब अप्रोक्सीमेशन, कि लो टेम्परेचर पे ये टी क्यूब की तरह वेरी करता है स्पेसिफिक हीट किसी भी सॉलिड का। बट दैट इज जस्ट ए फोनोनिक कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हम सीवी इन जनरल कह रहे हैं, बट हाँ इंसुलेटर्स के लिए ये गुड है। मेटल्स के लिए कुछ और भी कंट्रीब्यूशन आता है जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। हाँ, किसी भी मटेरियल के स्पेसिफिक हीट का एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट, मतलब इफ यू गो, पता नहीं मैं ये बात किया था पिछली क्लास में, एक्सपेरिमेंटली डिबाई टेम्परेचर वगैरह कैसे निकालना है। तो चलो, आई मीन इफ वी सी द टोटल स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी मटेरियल, इफ इट इज ए मेटल, तो इसके दो कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं, सी इलेक्ट्रॉनिक प्लस सी फोनोनिक। करा था बात ये? नहीं करा था, ठीक है। मींस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी स्पेसिफिक हीट, मींस हीट स्टोर कर सकते हैं, और एटॉमिक वाइब्रेशंस भी जो है हीट स्टोर कर सकती हैं। दो मैकेनिज्म हो सकते हैं इन जनरल एक मटेरियल में हीट स्टोर करने के। सो देयर विल बी टू स्पेसिफिक हीट्स।
अगर आपका मटेरियल इंसुलेटर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, तो उस केस में सिर्फ सी फोनोनिक ही होगा। तो ये जो अभी तक का फॉर्मेलिज्म है, दिस विल गिव यू द टोटल स्पेसिफिक हीट। बट मेटल्स के केस में देयर विल बी अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। और ये डिबाई टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करना है, दिस वी कैन डू बाय मेजरिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी मटेरियल एट लो टेम्परेचर। तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट लो टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। सो देयर आर टेक्निक्स टू मेजर स्पेसिफिक हीट, उस पे नहीं जाएंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। सो लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट वैल्यूज आप मेजर करेंगे, और जो स्पेसिफिक हीट है, तो फोनोनिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टी क्यूब, इजंट इट? सो फोनोनिक कॉन्ट्रीब्यूशन इज टी क्यूब, और ये हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। सो अभी मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो होता है स्पेसिफिक हीट का, वो होता है लीनियरली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड सोमरफील्ड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सोमरफील्ड थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट जो है वो गामा इंटू टी आनी चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि ओके, इसका रेलेवेंस क्या है? इसका जो रेलेवेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक्सपेरिमेंटली आप मान लीजिए C वर्सेस T आपने मेजर कर लिया। सो व्हाट वी यूजुअली डू इज वी प्लॉट C बाई T वर्सेस T स्क्वेयर। हम एक्सपेरिमेंटली कोई डेटा जो आपके पास आता है उसका हम C बाई T वर्सेस T स्क्वेयर प्लॉट करेंगे, और इस इक्वेशन को अगर आप देखते हैं, सो व्हाट विल बी C बाई T वर्सेस T स्क्वेयर, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैं टी स्क्वायर प्लॉट कर रहा हूं, टी नहीं। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखेंगे, सी बाई टी किसके बराबर आ जाएगा इससे, सी बाई टी विल बी गामा प्लस बीटा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर मेरा वेरिएबल है इधर को। सो दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। सो यूजुअली एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, सी बाई टी वर्सेस टी स्क्वायर प्लॉट करते हैं। उस प्लॉट का ये जो इंटरसेप्ट होता है वो क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट गामा, एंड दिस इज द वेल नोन सोमरफील्ड कांस्टेंट। तो ये हम सोमरफील्ड कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। बट हाँ, एक्सपेरिमेंटली सोमरफील्ड कांस्टेंट हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट से, गामा। और दूसरा, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, दैट विल बी नथिंग बट बीटा, इजंट इट? द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी बीटा। अब बीटा का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बीटा का फिजिकल सिग्निफिकेंस आता है यहां से। इफ यू सी दिस पोर्शन ऑफ डिबाई इंटीग्रल, ये सारा पोर्शन ले लेते हैं, ये सारा पोर्शन, राइट? तो यहां से हम कह सकते हैं कि बीटा जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 234 n नंबर ऑफ एटम्स kb डिवाइडेड बाय थीटा क्यूब के बराबर होना चाहिए बीटा। n फिक्स है, मतलब पर्टिकुलर मटेरियल के लिए नंबर ऑफ एटम्स फिक्स होंगे, है ना, कितने एटम्स आप ले रहे हैं, कितनी यूनिट सेल ले रहे हैं, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फिक्स है, ओनली थिंग इज थीटा। सो बीटा तो हम एक्सपेरिमेंटली स्लोप से निकाल सकते हैं, राइट? सो इट विल बी अ नंबर टू अस। सो यहां से हम डिबाई टेम्परेचर निकाल सकते हैं। डिबाई टेम्परेचर विल बी इक्वल टू क्या होगा, 234 n kb ओवर बीटा रेज टू द पावर 1/3। सो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली किसी मटेरियल का डिबाई टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट से या स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आते हैं किसी भी मटेरियल के। एक आता है सोमरफील्ड कांस्टेंट, दूसरा आता है डिबाई टेम्परेचर बीटा, आई मीन बीटा से डिबाई टेम्परेचर थीटा। सो इस तरह से स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट करके हम जो है किसी मटेरियल का डिबाई टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स थियोरेटिकली भी कर सकते हैं कैलकुलेट। वो v हमें चाहिए वेलोसिटी, और वेलोसिटी हम किससे निकाल सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी के से, है ना, ओमेगा वर्सेस के हो। तो थियोरेटिकली भी हम किसी मटेरियल का डिबाई टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। थियोरेटिकली डिबाई टेम्परेचर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, बिकॉज वेलोसिटी जो है एक फिक्स नंबर नहीं होता किसी मटेरियल के लिए।
अलग अलग डायरेक्शन में ओमेगा वर्सेस के अलग अलग तरह का होगा। तो ब्रुलियन जोन में वेलोसिटी भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। सो डिवाई टेम्परेचर एक एवरेज प्रॉपर्टी है विच इज एवरेज ऑफ सर्टेन अदर थिंग्स। तो वेलोसिटी की अगर एक हम एवरेज वैल्यू ले लें, उससे निकाल सकते हैं कि भाई डिवाई टेम्परेचर एवरेज क्या होगा। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एस्टिमेटिंग दैट वेलोसिटी एंड गेटिंग करेक्ट वैल्यू ऑफ डिवाई टेम्परेचर। बट हाँ, वहां से भी आ सकता है डिवाई टेम्परेचर। आई होप मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को समझ आ रहा है। आ रहा है समझ सबको? पीजी हाँ जी स्टूडेंट सर। आ रहा है कि नहीं, या मैं खुद ही बोली जा रहा हूं और मुझे ही समझ आ रहा है? नहीं नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है, फाइन। सो मतलब मैं जिन एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूं वो मैं यहाँ दिखा चुका हूं आपको, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं जा रहा हूं। मीन्स डिवाई टेम्परेचर v है ना यहाँ पे अननोन v, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस v की बात कर रहा हूँ, डी ओमेगा अपॉन डी के से ये रिलेटेड रहेगा, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। खैर, तो दूसरा मॉडल है, क्विकली बात कर लेता हूं, आइंस्टीन मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट। सो डिबाई ने क्या कहा था कि भाई ये सब जो अभी तक हमने बात किया, ठीक है, आइंस्टीन ने क्या कहा कि सारे जो एटॉमिक हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिबाई एंड आइंस्टीन मॉडल। सो आइंस्टीन मॉडल के हिसाब से उसने कहा कि भाई डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है, n एटम्स हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही आएगी वो डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेल्टा फंक्शन है ये डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए। डेल्टा मींस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे ही नॉन जीरो होगी डेंसिटी ऑफ स्टेट। एट अदर वैल्यूज इट विल बी जीरो। मींस ऑल दी एटॉमिक ऑसिलेटर्स विल बी ऑसिलेटिंग एट सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये एक गलती भी थी आइंस्टीन मॉडल की, और ये उसकी अजम्पशन थी, मतलब, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर u आप कैलकुलेट करते हो तो u कम्स आउट टू बी लाइक दिस वन। ये आप एस्टिमेट कर सकते हो सब्स्टिट्यूट वगैरह करके पीछे वाले जनरल एक्सप्रेशन में, किटल में दिया हुआ है, सो यू डोंट नीड टू बॉदर, वहां से देख लेना, आप आराम से पढ़ लेना, कोई कंफ्यूजन आता है तो यू कैन आस्क। सो आइंस्टीन मॉडल के हिसाब से स्पेसिफिक हीट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू दिस। यहाँ पे हम देन वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड आई मीन ओके, ये जो कंपैरिजन है डिबाई वर्सेस आइंस्टीन मॉडल का, यहाँ पे आप थोड़ा सा सिस्टमेटिकली देख सकते हो। सो डिबाई मॉडल के हिसाब से डेंसिटी ऑफ स्टेट ऐसी होनी चाहिए, ओमेगा स्क्वायर, पैराबोलिक डिपेंडेंस। और आइंस्टीन मॉडल के हिसाब से क्या होनी चाहिए, डिराक डेल्टा फंक्शन। कोई पूछ सकता है आपसे कि डिबाई मॉडल की डॉस और आइंस्टीन मॉडल की डॉस में क्या फर्क है, डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर फोनॉन्स। सो डिबाई मॉडल में ऐसे कुछ ओमेगा वर्सेस डी ओमेगा ऐसा कुछ होना चाहिए। वी कैन सी इट फ्रॉम हियर, है ना। ओमेगा स्क्वायर डिपेंडेंस है, ओमेगा का v पे भी डिपेंडेंस होगा वैसे। वेलोसिटी अगर आप वेलोसिटी ऑफ साउंड ले लो, चलो, क्योंकि डिबाई ने क्लासिकल मॉडल से वो कर लिया था, तो हाँ, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। बट आइंस्टीन मॉडल में एक आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही, स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर ही डेंसिटी ऑफ स्टेट होगी, अदर फ्रीक्वेंसीज पे वो जीरो होगी। दैट्स द मेजर डिफरेंस कि भाई आइंस्टीन मॉडल में एक स्पेसिफिक वैल्यू पे ही होगी डेंसिटी, means atomic vibrations will have a specific frequency which we call Einstein frequency, you can call, ठीक है, ओमेगा नॉट। और डिबाई के हिसाब से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट हो सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस था, और दोनों का आप और थोड़ा डिटेल में देख सकते हो। हाँ, डिबाई मॉडल भी क्या कंप्लीट है तो नहीं, दिस इज डिबाई मॉडल के हिसाब से डेंसिटी ऑफ स्टेट कुछ ऐसा होना चाहिए। दैट वाज आल्सो ए सिंप्लीफिकेशन। दिस इज एक्चुअली दिस इज योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, यू कैन से कि भाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद सडन कट ऑफ हो जाता है एटॉमिक वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी का, कि एटॉमिक वाइब्रेशंस उसके ऊपर नहीं हो सकती हैं। बट एक रियल मटेरियल के लिए अगर आप डी ओमेगा कैलकुलेट करते हैं, अब सवाल है कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, उस पर बात नहीं करेंगे। बट हाँ, एक रियल मटेरियल के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट कैन बी सम कॉम्प्लेक्स शेप फंक्शन, है ना। तो ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है, ये कोई भी एक जनरल शेप हो सकता है। और बट हाँ, अगर आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट पता है तो थर्मल प्रॉपर्टीज आप उससे निकाल सकते हैं। इट इज नॉट एज सिंपल एज डिबाई थिंग। सो इवन इफ डिबाई मॉडल फेल समवेयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, दैट मीन्स कि भाई वो जो मटेरियल है उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट इज नॉट एज पर डिबाइज डिस्क्रिप्शन, है ना। So again, you can talk of a cutoff frequency here. उस frequency को हम
एग्जैक्टली डिबाई फ्रीक्वेंसी तो नहीं बोल सकते, बट हाँ वी कैन ट्राई टू रिलेट इट टू दी डिबाई फ्रीक्वेंसी, क्वालिटेटिवली उससे जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है एक हर मटेरियल के लिए कि उससे हाई फ्रीक्वेंसी की एटॉमिक वाइब्रेशंस नहीं होंगी। इसमें और क्या बताने वाला था, आई मीन ठीक है, डी ओमेगा अगर आपको पता है तो आप ये मैं पिछली स्लाइड में दिखाई देता हूँ आपको। डी ओमेगा अगर आपको पता है तो आप यहाँ से किसी भी मटेरियल की डी ओमेगा ले लो, यू आप कैलकुलेट कर लो, या यू कर लिया तो आप फिर किसी भी जनरल मटेरियल, यहाँ तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाई हमने, डिबाई भी नहीं लगाई है, ठीक है। तो ये अगर कर लोगे तो इस फॉर्मूला को लोगे तो यहाँ से u निकल जाएगा, डी यू अपॉन डी टी लेंगे तो आप, और टेम्परेचर कहाँ बैठा होगा n में, ठीक है। सो डी यू ओवर डी टी निकालेंगे तो आप स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हो इन जनरल, नॉट एज पर डिबाई अप्रोक्सीमेशन। तो ये सब जो भी ये मैथमेटिक्स किया गया है ये डिबाई मॉडल के हिसाब से है। जनरली किसी मटेरियल के लिए यहाँ तक आपको जनरल चलेगा, यू कैलकुलेट कर लो अलग अलग टेम्परेचर पे, डी ओमेगा आपको अगर दिया है और आप स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, सो जनरल आई मीन किसी भी 3 डायमेंशनल मटेरियल के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं, डी ओमेगा को देखने का एक और तरीका है। आई मीन दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट डी ओमेगा। डी ओमेगा इंटू स्मॉल डी ओमेगा, ये क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स के बराबर होता है, राइट। सो अगर हम रेसिप्रोकल स्पेस की वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं रेसिप्रोकल स्पेस में, सो दिस इज वॉल्यूम पर स्टेट। ये क्या है, वॉल्यूम पर स्टेट। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था ये शायद, जहां बॉर्न-वन-करमैन बाउंड्री कंडीशन वगैरह देख रहे थे। सो दिस इज वॉल्यूम पर स्टेट 3D केस में। तो दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ डिबाई स्फीयर बोल सकते हैं उसको, कि भाई ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये 0 है, ओमेगा डी बोल दो या कोई भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, तो उसका टोटल वॉल्यूम v है मान लीजिए, रेसिप्रोकल स्पेस में ही होगा, ओमेगा स्पेस और k स्पेस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। सो डिबाई स्फीयर के वॉल्यूम ले लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए L ओवर 2 पाई क्यूब से। सो व्हाट विल दैट गिव यू, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक वाइब्रेशंस, ठीक है। तो अगर ये आपको, आई मीन दिस सरफेस इज नॉट नेसेसरली ए वेल डिफाइंड स्फीयर, ऐसा कुछ नहीं है कि स्फीयर ही हो। तो 3D केस में एनिसोट्रॉपी भी तो हो सकती है किसी मटेरियल में, कि ओमेगा वर्सेस के का किसी एक डायरेक्शन में कट ऑफ कहीं पे हो, दूसरी में कुछ हो। सो इन जनरल इट इज गोइंग टू बी ए कॉम्प्लेक्स सरफेस और रादर कॉम्प्लिकेटेड सरफेस। उसको देखने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई इस वॉल्यूम इंटीग्रल को, जो एक कॉम्प्लेक्स सरफेस के लिए इन सिंपल नहीं है निकालना, हम कुछ इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको हम ऐसे देख लेते हैं, लेट अस ट्राई टू मेक इट ए सरफेस इंटीग्रल। So we will say, okay, if we take the surface area of that complicated surface, ds omega, and then multiply that with dk, तो आप उसको भी वॉल्यूम की तरह ही देख सकते हो। जैसे आप स्फीयर में बोल सकते हो कि स्फीयर का वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लेना है किसी स्फीयर का, मान लीजिए ऐसे ही करते हैं ना, कि भाई अच्छा मैं काम करता हूँ, सर्कल का एरिया ले लेता हूँ 4 पाई r स्क्वायर ले लेता हूँ इंटू dr कर देता हूँ, ऐसे करते हैं ना। सेम ही चीज करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई सरफेस एरिया फॉर ओमेगा प्लस डी ओमेगा कांस्टेंट फिक्स कर देते हैं, उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डी के से, विच इज परपेंडिकुलर टू ds। तो उस तरह से भी इस इंटीग्रल को हम देखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। एंड अच्छा, तो अब हमें चाहिए डी के विच इज परपेंडिकुलर टू ये जो आपका ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट वाला सरफेस है। तो अगर आप ग्रेडियंट लेते हो, ग्रेडियंट भी पढ़ा ही आपने ना, तो ग्रेडियंट एक्चुअली इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ओमेगा कांस्टेंट, ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने। सो अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई दिस ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू के, और पता है ये ग्रेडियंट हमने लाया उससे क्या फायदा हुआ कि भाई ओमेगा वर्सेस के तो हमारे पास कहीं ना कहीं से किसी फॉर्मलिज्म से उपलब्ध होगा ना किसी मटेरियल के लिए। सो इफ यू हैव दैट ओमेगा वर्सेस के, so it will be easy to find out this gradient of omega। तो इसलिए इस वॉल्यूम इंटीग्रल को हम उस सिर्फ सिंपल सेम डेटा मींस ओमेगा वर्सेस के डेटा यहां पर भी इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें काम आ सकता है। तो आपको मेन टारगेट क्या रहता है, जैसे
जब आप इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी स्टडी करते हो तो E वर्सेस K रहता है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी स्टडी करते हो तो बैंड स्ट्रक्चर एक बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है किसी मटेरियल के लिए हमारे पास, टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। इसी तरह से जब आप फोनोनिक प्रॉपर्टीज करते हैं तो वहां पे ओमेगा वर्सेस के, इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ई वर्सेस के, बिकॉज ई इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा ही होता है ना वो फोनोन के लिए, पर ये ठीक है। सो दिस इज ओमेगा वर्सेस के भी एक की पैरामीटर होता है किसी मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज या फोनोन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को देखने का। सो ये अगर हम लिखते हैं तो दिस इज परपेंडिकुलर टू ऑफ कोर्स ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस। तो अच्छा, इसको अगर मैं देखूं तो ये किसके बराबर होगा? डी ओमेगा के बराबर होगा, isn't it? मींस ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा टू डी के परपेंडिकुलर इज डी ओमेगा। सो हम क्या कह रहे हैं कि भाई अच्छा, डी ओमेगा को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मींस अगर मैं डी एस इंटू डी के परपेंडिकुलर को लिखूं इसको, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, डी एस डी के परपेंडिकुलर की बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं ये डी के ओमेगा को इधर ले जाता हूं राइट हैंड साइड में, है ना। सो दिस विल बी डी ओमेगा अपॉन दिस। तो ये चीज जो है, जो हमारे इस इंटीग्रल के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डी एस ओमेगा इंटू डी ओमेगा ओवर वीजी, बिकॉज व्हाट इज दिस इज नथिंग बट दी ग्रुप वेलोसिटी फॉर दी फोनोन्स। और ये कहां से आ सकती है? अगर आपको ब्रिलियंट जोन में ओमेगा वर्सेस के अवेलेबल है, तो ये जो इंटीग्रल है आपका, मतलब ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट वाला इंटीग्रल है, इसको हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वेलोसिटी चाहिए और ये सरफेस इंटीग्रल चाहिए, ऑफ कोर्स ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट वाला। सो हमारा प्रॉब्लम वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व करने की बजाय सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स सम डेटा वी कैन गेट फ्रॉम ओमेगा वर्सेस के, तो उससे हमारी जो लाइफ है वो काफी सिंपल हो जाती है। तो यहां से हम डी ओमेगा फॉर एनी मटेरियल इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन भी कहीं थियोरेटिकल फिजिक्स की किताबों में आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट अगर फोनोन्स की कैलकुलेट करते हुए कोई दिखाएगा तो ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर फोनोन डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो फोनोन डेंसिटी ऑफ स्टेट इस तरह से इस एक्सप्रेशन से जुड़ी होती है, ठीक है। वेल आई थिंक टाइम इज अप फॉर टुडे। कल मैं क्विकली फटाफट से बाइंड अप करूंगा, एनहार्मोनिक इफेक्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, क्या होते हैं एनहार्मोनिक इफेक्ट और कैसे वो थर्मल प्रॉपर्टीज, मतलब थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल रेजिस्टिविटी को कॉज करते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी फॉलोइंग टुमारो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ उमकलप स्कैटरिंग एंड नॉर्मल स्कैटरिंग की दोनों में क्या फर्क है। और ये नॉट ओनली इन फोनोन्स, इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टिविटी में भी उमकलप स्कैटरिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है और थर्मल रेजिस्टिविटी में भी उमकलप स्कैटरिंग का रोल रहता है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टुमारो, ठीक है। सो वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई सवाल है तो यू कैन आस्क, और एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नहीं? So you can quickly sign your attendance. कल से मैं एक रजिस्टर लेके आऊंगा, यस सर वाली अटेंडेंस लगा लेंगे, वरना मुझे डेटा ढूंढना पड़ेगा। ओके, साइन कर दो क्विकली, यहाँ पे छोड़ दो अपने रोल नंबर्स। डन, आई होप सबका हो ही गया होगा अटेंडेंस। सो देन ओके, दैट्स ऑल।